Good morning, student of class Earth. As you know that in this video I am going to start your first chapter of civics, that is the Constitution of India. Bharat ka Samvidhan, it means the Constitution of India. Okay. In this video we will understand what is Constitution. What is Constitution? And second, we will try to understand second things is why do we need a constitution and Indian constitution. Why do we need a constitution? Okay. And third, we will try to understand Indian constitution, that कि कैसे, how this is made. Indian constitution. So without any fear, without any complex ideas making in your mind, try to save in your mind that we will understand only three things. In this video, we can understand very easily only three things, not more than. Do not make it complex. Okay, what is constitution? Very simple things. And why do we need a constitution? Very clearly described in your textbook. I'll tell you. And Indian constitution, little introduction of Indian constitution. आपको संविधान वेत्ता नहीं बनना है. Okay. Come to the main point. Student, I hope all of you ध्यान देखो. आपका concentration is going other place. Concentrate here. What is constitution? First, actually, why do we need constitution? This is first question, but we will try to understand what is constitution. Suppose an example. Through an example. In your school is regulated and controlled by few laws and regulation. Is it right? Right. You are also controlled by some law and regulation in your school, है ना? हमारे स्कूल में कुछ रेगुलेशन है, कुछ नियम है, कुछ कानून है कि आपको सुबह 9 AM पे पहुंचना है, आपको असेंबली करना है, आपको प्रेयर करना है, फिर आपको क्लास में जाना है. इफ यू वांट टू गो आउट फ्रॉम क्लास यू हैव टू कीप योर पास. ठीक, ओके. If you want to discuss anything with principal ma'am, you have to take permission before entering the office of principal ma'am. These are all the protocols and rule regulation help us to run smoothly the system. This help. But we have not any written record, but we know that we have to do these works in these special times. These all the things are mentioned. Similarly, do you think that our country, any country, a state, a large body of population and territory, this can be learned without any rule and regulation? Everyone is under any rule and regulation. Every function, every work is going on in under rule and regulation. Prime Minister, Chief Minister, CM, judges and district magistrate, they are also in under rule and regulation. What is constitution here? Constitution, it means this is the collection of rule and regulation by which a country governed and control the political institution and citizen. This is a collection of rule and regulation. This is called constitution in simple. Okay. अगर इसको थोड़ा सा हम अलग लैंग्वेज में कहें तो written or unwritten record of rule regulation by which a country is called. This is called constitution. हमारा देश एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर महोदय आपको कौन कौन सी बदमाशी करनी है. ये दीज ऑल दी थिंग्स आर मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. प्राइम मिनिस्टर महोदय को कैसे चीफ मिनिस्टर महोदय को कैसे चुप रहना है, कैसे साइन सिर्फ करना है. दिस ऑल दी थिंग्स आर मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. आपने कोई गलती किया, आपने कोई बदमाशी किया तो आपको सजा कैसे दिया जाएगा. दिस ऑल दी थिंग्स आर मेंशन्ड इन लॉ एंड रेगुलेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड IPC.
चीफ मिनिस्टर के फंक्शंस क्या होंगे, गवर्नर के फंक्शंस क्या होंगे, गवर्नमेंट जो प्रधानी उर्धानी हो रहा है, सब कुछ रूल रेगुलेशन फिक्स्ड है। नहीं तो ऐसा होता ना कि आप रूल रेगुलेशन ना होता तो क्या करते, सुबह आकर के अभी स्कूल में आया 9 बजे, एक दिन पहुंचे 11 बजे, ऐसे करके मैम अभी मेरे का मन कर रहा है कि मैं थोड़ा लेट सो गया, तो मैं सोचता है कि मैं आया इधर 12 बजे, टहल घूम के अभी स्कूल से चला जाएगा, अभी मेरे पढ़ने का मन नहीं है, मैं रूल रेगुलेशन नहीं मानता। तो यू आर अंडर कंट्रोल, आउट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन, इट मीन्स यू आर नॉट फॉलोइंग रूल। यू कैन कम स्कूल एनी टाइम एंड यू कैन गो आउट फ्रॉम स्कूल एनी टाइम इफ देयर इज नो रूल रेगुलेशन। But rule and regulation and laws control your action and coordinate the society. This is the major function. Okay, similarly our country is also. प्राइम मिनिस्टर का मूड बन गया, नहीं देखिए इलेक्शन नहीं कराना, मन कर रहा है, मैं बुढ़े हो गए हैं, हमारा मन कर रहा है कि हम ऐसे बैठे रहे तो बड़ा मजा आता, प्रधानमंत्री बनने में बड़ा मजा आता है, हेलीकॉप्टर से घूमने में मजा आता है, ना कराओ इलेक्शन तो बहुत बढ़िया रहता। That cannot be happen, ना? Because these all the things will be under rule and regulation, constitution. Simple, in simple language, constitution is a collection of rule and regulation. Why do we need constitution? First, why do we need constitution? We need constitution in 3 aspects. Firstly, it defines the basic nature of our society. In your textbook written, it defines the basic structure of society, that कि सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, लोगों का जो रिलेशन है, गवर्नमेंट का जो रिलेशन है, वो कैसे होगा, ठीक है, कैसे होगा, जिसमें आपका एग्जांपल दिया गया है कि आप देखेंगे कि किस तरीके से नेपाल में 1990 में बिफोर 1990 देयर आर मोनार्कियल गवर्नमेंट इन, बट 1919 पीपल रिवोल्टेड अगेंस्ट द मोनार्की एंड मेक मोनार्कियल डेमोक्रेसी, और देन उसके बाद फिर 6 में आकर के 2002 में किंग ज्ञानेंद्र वहाँ बैठते हैं नेपाल में, और वो उन्होंने क्या किया, जो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट थी उसको भंग कर दिया। फिर 2008 में फिर रिवोल्ट्स होते हैं और डेमोक्रेसी, रिपब्लिक डेमोक्रेसी वहाँ पर इस्टेब्लिश की जाती है, और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रामवरण यादव जी वहाँ नेपाल के चीफ प्रेसिडेंट बनते हैं। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, दिस आल्सो डिफाइंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट डिफाइन एंड डिस्क्राइब एंड structured the nature of society and it describe the nature of country's political system. किसी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, इसको भी बेटा क्या करता है, डिफाइन करता है। कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ करके ही हम ये जान पाएंगे कि भाई इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन क्या है पर मोनार्कियल। इन 7th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, in that class you have studied about there are many form of government: dictatorship, military dictatorship, communist, democracy, okay, monarchical democracy, republic democracy, these are all forms of government. So which form of government are working in a country, this can be understand by constitution. Constitution describe the structure of political structure of country, which type of government is working there. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश को बताता है कि हमारा देश, आवर कंट्री इज रिपब्लिक डेमोक्रेसी। इट मीन्स आवर कंट्री इज रिपब्लिक प्लस डेमोक्रेसी। I'll explain what is republic and what is democracy. Many people are very confused about republic and democracy, differences among republic and democracy. I'll discuss, but here not. Okay, the third you will see that this another जो important function of constitution is protect the interest of minorities, and another key role of constitution is to safeguard us against choice and might have undesirable effect on rules and principle. And one thing और constitution describe करता है as a safeguard of minorities. इससे पता चलता है कि किसी देश में जो minorities हैं, चाहे OBC हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, OBC minority नहीं है, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इनके जो इंटरेस्ट है, इनके जो वेलफेयर्स हैं, कल्याण है, इनके बारे में भी ये डिस्क्राइब करता है और बताता है कि इनके लिए किस तरीके से सोसाइटी के जो मेंबर हैं, दिस मेंबर ऑफ सोसाइटी, हाउ गवर्नमेंट विल डील दिस, ऑल द थिंग्स आर डिस्क्राइब्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन. इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस वे, दिस इज इम्पॉर्टेंट. वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट डिस्क्राइब अबाउट माइनॉरिटीज, अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ देयर इंटरेस्ट. दीज आर
Indian Constitution. In only 2 or 3 videos I cannot describe Indian Constitution. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतनी बड़ी नहीं, दुनिया का सबसे रिटन एंड लेंदी एंड एग्जॉस्टिबल एंड largest and exhaustible constitution of the world, that how can I describe the whole constitution of India in only 2 or 3 videos. But student, forming up making of constitution is too lengthy. अगर मैं इसको ही पढ़ाऊंगा तो आपको 20 डेज का क्लास लगेगा, अगर मैं एक बहुत कॉम्पिटेटिव हाई लेवल पढ़ाऊँ. लेकिन मैं ट्राई करने का हम लोग प्रयास करेंगे कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सिर्फ 2 पॉइंट हम देखेंगे कि ये कब बनने को शुरू हुआ. आप जानते हैं कि लगभग 2 years 11 month एंड 18 days, इतनी दिस टाइम पीरियड ऑफ फॉर्मिंग ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. क्या हुआ था कि लगभग 19, आपको याद रखना है कि फर्स्ट 9 दिसंबर 1946 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन के बनने की लगभग 300 मेंबर के साथ, जिसके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसकी टेम्परेरी प्रेसिडेंटशिप में 9 दिसंबर 1946 में मीटिंग बैठी और कॉन्स्टिट्यूशन में बनने का हमारा प्रोग्राम शुरू हो गया, यानी आज़ादी के पहले ही 9 दिसंबर 1946 में. और इसके 2 डेज ही बाद इसमें 11 दिसंबर 1946 में हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक परमानेंट प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट, ही अपॉइंटेड एज परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्टेड इट्स वर्क फॉर मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन. और अल्टीमेटली हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने 26 नवंबर 1949 को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बना करके, इट मीन्स यू आर नॉट लुकिंग इन वीडियो आई थिंक, ओहो आई हैव टू रीचेंज इट. नाइन दिसंबर अब 1946 को स्टार्ट हुआ. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. आप आवाज़ में सुन करके यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट टाइम इज गोइंग वेरी. फिर 11 दिसंबर को परमानेंट मेंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और फिर 26 नवंबर को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनके 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन बन करके शुरू हो गया. और उसके 2 मंथ बाद 26 जनवरी को 1950 को our constitution came into force. From that time we celebrate Republic Day, because at that time we elected our first president as Rajendra Prasad, and the most important committee of Constitutional Assembly was drafting committee. Chairman of drafting committee was Dr. Bhimrao Ambedkar. He is also known as father of our constitution. तो स्टूडेंट, इस तरीके से हमारी जो इस टाइम पीरियड में लगभग 2 years 11 month इतने में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ. ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को आप याद रखोगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद रखोगे. 9 दिसंबर 1946 से लेकर के और 26 नवंबर 1949 तक ले कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ. अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे कुछ फीचर्स क्या हैं, द फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. हम फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे और चैलेंजेस फेस्ड बाय फ्रेमर्स. These 2 things will be discussed in next video. Try to understand this and read your textbook near about 2 or 3 times. Then you can understand everything. If you are facing any challenge, you can directly contact me to understand everything. Okay, student, thank you.